How many people already running the Flutter? You, 3, 4, and you. Very last number, and after that I am seeing the crowd here. That's a magic of the pizza or magic of the Vivek? By the way, nice. So today actually I am here. By the way, ये तो पता है ना Flutter क्यों यूज होता है? Flutter to make the web application, to make the mobile application, especially for the make the mobile application. So if you are making your mobile application using the Android, then it will run only in the Android mobile. If you are using the iOS, then it will available only in the iOS. So some year ago, I was also developing this type of the application, but that time was really gold for me because I can apply the double charge to the client and take the double time, first for the Android, second for the iOS. But now Flutter is reduced my income because only one time I am written the code and it's running in the all type of the environment, and I am shocked that client also know about it. So they are not paying me extra charge. It's okay. This is my problem. Now, by the way, for the developer, for the client, that's a wonderful because you can write the one code and run in your desktop application, run in your Android mobile, and in India, a lot of people buying the iPhone 17 अभी सेल में आया, बहुत लोगों ने खरीदा. So that's the reason Flutter is successfully running, smoothly running in iPhone as well. So that's why in India especially, not I'm talking about the India because you are becoming a global developer. So obviously your application must be flow in the whole over the world. So Flutter is a magic which can create your mobile application very fastly in a Chrome, in the desktop, in a iOS, in a Android. So in any type of environment, you can make your perfect application. And I think before the lunch, you already known about it, right? So I am just repeating. Don't worry. असली हीरो अभी आके आया. अच्छा चलिए, आपने मोबाइल की हेल्प से कोई एप्लीकेशन बनाया, मतलब यू आर रनिंग द बेस्ट एप्लीकेशन, बट आज की तारीख में कोई भी एप्लीकेशन एआई के बगैर तो ऐसा है जैसे आउटडेटेड आइटम सेल कर रहा है कोई हमें, है ना. Everyone know about the, मतलब if you are making any application, then you are solving any issue. You are solving the farmers issue, you are solving the Uber cab, you are solving the any type, waste management, many things. But everywhere you need AI. And for the AI, what are you using? For the AI, what are you using? LLM. Yes. What LLM? Gemini, OpenAI, Claude. Yes. Yeah. And I think you all, I'm also using same thing, and I'm Indian. I don't like to pay to the company the pay for the using AI because always I wait always to release the cloud again. Just block me. Now it will open 3 hours. Okay, I can wait because I am not ready to pay. How many people always like this? Like me? Yeah, they are really honest. Yeah, everyone don't like to pay to Claude, but no one is raising your hand. Okay, are you ready to pay the cost for the Gemini? No? OpenAI? अच्छा, डेवलपर को छोड़ दो, बाकी कोई पे कर रहा है? तभी तो हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं, फिर भी कंपनी ज़्यादा नहीं करती, को पता यहाँ इनकम नहीं होगी. लेकिन डेवलपमेंट यही है. सबसे ज़्यादा जो टैलेंट है, सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंस है, सबसे ज़्यादा जो हार्डवर्क है, सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन है, वो इंडिया में है. एंड गूगल नो अबाउट इट कि ये लोग पे नहीं करेंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर. कुछ ना कुछ फोड़ने की ताकत तो इनमें है, बट दे आर नॉट रेडी टू पे फॉर API. And that's the reason कि they are not launching their most of the model in India. They are not launching the Gemini latest model in India. I always have to use the Gemini from the US region. And what is the benefit for the Google? For me, I have to pay extra because I am using the model from the US region. So what should I do? I should stop the application
No. No one can stop us. We are Indian. So that's the reason Google gave us a special model. This is called Open LLM. Google ने कहा ये लो इसे डाउनलोड करो और फ्री में यूज़ करो, कोई API नहीं. This is my talk today. So I want to make a perfect application in mobile. You can make a mobile application which can prescribe your medicine, which can help in the mountain, which can help in the boat, which can help in the plane. You can play the game, you can summarize your PDF without worrying about the internet, क्योंकि हम कहीं से ले ही नहीं रहे, and without worrying about your API ping, क्योंकि हम तो already download कर चुके हैं. So Gemini, Claude या other LLM always आपके input और output के base पर आपको charge करते हैं. So you are making any type of the application, doesn't matter. You are using web application, you are making in the production, you are creating the mobile application, but only the base of your input, output and generating it apply the cost. And you can't think, if you have multiple 1,000 users, then your cost. कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुना था ना कि माइक्रोसॉफ्ट का 4 महीने में ही ख़त्म हो गया बजट, उबर का ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि API कॉस्ट इतनी ज़्यादा है. मैंने बताया ना कि US रीजन से रियल मॉडल आते हैं, इंडियन रीजन में इतने मॉडल है ही नहीं. सो दैट्स द रीजन वी हैव टू पे एक्स्ट्रा. मतलब यहाँ पे 10 लाख यूजर आ गया, आपका बिल फट गया. सो काफ़ी स्टूडेंट, न्यू डेवलपर्स ऑलवेज थिंक, मतलब वी आर यूजिंग द फ्री जेमिनाई. 4 क्वेरी के बाद एग्जॉस्टेड. क्लॉड कहता है 4 घंटे बाद मिलेंगे. होता है ना, कितने लोगों को इरिटेशन होता है, मुझे तो बहुत होता है. मैं ज़रूरी काम कर रही होती हूँ, पहले तो 50 फालतू क्वेश्चन देगा और जैसे ही काम की बात आएगी, ओके यू आर ब्लॉक नाउ, अब रात को 2 बजे मिलेंगे. व्हाट इज दिस यार. अब तुमसे बात करने के लिए 2 बजे पे जागना पड़ेगा. अच्छा मैं कभी कभी जाग भी जाती हूँ कि ठीक है मेरा ज़रूरी काम है. 3 मिनट बाद कहता है कि ना आप सुबह 6 बजे मिलेंगे. राइट और नॉट. और उस समय मैं गुस्से में टैब बंद कर देती हूँ, अब तुम जाओ, अब तुमसे हम कल भी नहीं मिलेंगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिलना पड़ता है. सो ये सिचुएशन अभी तो ठीक है, जनरेटिंग द कोड आदत पड़ गई है, हम इंडियंस है एडजस्ट कर लेते हैं. प्रॉब्लम एक नया स्टूडेंट जिसको कल कॉलेज में प्रोजेक्ट जमा करना है, या उसके दिमाग में अभी अभी आइडिया आया. वैसे यूथ का प्रॉब्लम पता है क्या होता है, आइडिया यूँ आता है और यूँ जाता है. तो इससे पहले कि आइडिया जाए हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है. ओके, फॉर दैट वी नीड अ वे जहाँ पे मुझे API की चिंता ना करनी पड़े, कॉस्टिंग की चिंता ना करनी पड़े, LLM के ख़त्म या एग्जॉस्ट होने की चिंता ना करनी पड़े. सो दैट्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग द जैमा मॉडल. ओके, जैमा इज अ वंडरफुल मॉडल. वैसे मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं इसको बेच रही हूँ. आई एम नॉट अ सेल्समैन, मैं इसको सेल नहीं कर रही हूँ. तो मैं इसके प्रॉस कॉन्स दोनों बताऊँगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी कि मैं मतलब मेरा पर्सनली जैमा के प्रति एक अलग ही अटैचमेंट है. आई लव दैट. वाई? आई विल टेल यू. एक्चुअली जैमा दिस इज अ ओपन LLM. अदर भी हैं, ऐसा नहीं है कि जैमा ही है, और भी कई ओपन LLM हैं. सो बहुत सारे ओपन LLM हैं, पर राइट नाउ दिस इज अ गूगल इवेंट. आई एम अ गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, सो आई विल एक्सप्लेन ओनली द जैमा. तो दिस इज अ गूगल मॉडल जो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी, रिसर्च के लिए कहूँगी, फार्मा के लिए कहूँगी, फिनटेक के लिए कहूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा ओपन LLM मॉडल है जिसे आप डायरेक्ट अपनी डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं. और क्योंकि ये ओपन है तो आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, आपके डोमेन के हिसाब से आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद आप इसे अपने मोबाइल में, अपनी वेब एप्लीकेशन में या अपने किसी दूसरे टास्क में उसको यूज़ कर सकते हैं. जैमा इतना एक्सेसिबल है कि वो आपकी स्मार्ट वॉच में आ सकता है, आपका स्मार्ट मिरर बना सकता है, IoT में काम आ सकता है, एंड फ्लटर में एक्सेसिबल हो सकता है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर बात करें जेमिनाई की, दिस इज अ वंडरफुल, दिस इज अ स्मार्ट. वाई दिस इज अ स्मार्ट? क्योंकि वो एक ह्यूज डेटा सेट के साथ ट्रेन हुआ है. अगर मैं वही साइज का जैमा यूज़ करना चाहूँ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे उतना डाउनलोड करना पड़ेगा. दैट्स द रीज़न ये जैमा का एक कॉन्स कह सकती हूँ, साइड इफ़ेक्ट कह सकती हूँ.
लेकिन जैमा को, एआई को हर जगह अवेलेबल कराने के लिए जैमा के डिफरेंट वेरिएंट अवेलेबल है। यानी जैमा के पास जैमा के डिफरेंट साइज हैं। अगर मैं जैमा 3 की बात करूं सॉरी, तो जैमा 3 1 बिलियन पैरामीटर, जैमा 3 4 बिलियन पैरामीटर, जैमा 3 12 बिलियन पैरामीटर, जैमा 3 27 बिलियन पैरामीटर। जैमा 4 मार्केट में आ चुका है जिसका नाम है E2B। ई का मतलब होता है एजेस, एजेस मतलब मोबाइल, वॉच, एवरीथिंग। तो इसको और ज़्यादा लाइट वेट किया गया और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया गया। यानी कि वही LLM जेमिनाई वाला, उसको अब मतलब क्योंकि आपका जो जनरेटिव AI है, आपका जो LLM है, वो एक डेटा सेट के ऊपर ट्रेन है, और जब आप कोई इनपुट देते हो तो वो उसी डेटा सेट के बेस पर आपके लिए आंसर जनरेट करता है। दिस इज LLM। सेम जैमा एक LLM है जो गूगल के द्वारा, गूगल की सेम टीम द्वारा ही डिजाइन किया गया है, लाइट वेट रखा गया है, यानी थोड़ा कम डेटा सेट के साथ इसको ट्रेन किया गया है। एटलीस्ट बेस लैंग्वेज ये जानता है, इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, मराठी जानता है। आपके लिए इतना काफ़ी है, वैसे 140 लैंग्वेज जानता है, पर सिंधी नहीं जानता। मैं सिंधी हूँ, बात करी थी, नहीं दिया था जवाब। 140 लैंग्वेज में सिंधी नहीं है, बाकी मराठी है, आई ऑलरेडी टेस्टेड, तो मराठी जानता है। तो आप लोग मराठी में बात कर सकते हैं जो लोग हैं। पंजाबी बहुत अच्छी जानता है, मस्त बोलता है, बात कर सकते हो, ठीक है। जर्मनी जानता है, फ्रेंच जानता है, तो आप इसे बेस लैंग्वेज में कर सकते हो। अब बात आती है कि जीके नहीं जानता, तो दोनों से करो ना फाइन ट्यून, मना थोड़ी ना करा है उसने। तो मतलब ये छोटा मॉडल, अगर कोई, मैं किसी को नौकरी पे रख रही हूँ तो मैं उसे A फॉर एप्पल थोड़ी ना सिखाऊंगी, उसे बेस नॉलेज तो आनी चाहिए, बाकी तो मैं सिखा दूंगी। ऐसे ही जैमा है। इट्स नो द बेस लैंग्वेज, इट्स नो द ग्रामर, इट्स नो द वर्ड्स, इट्स नो द कॉन्टेक्स्ट, बट डोंट नो अबाउट योर डोमेन इंफॉर्मेशन, डोंट नो अबाउट योर लेटेस्ट डेटा। डोंट वरी, जस्ट गिव द डेटा एंड फाइन ट्यून। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइन ट्यून, रैक भी है। तो यूजिंग दिस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, यूजिंग द ग्राउंडिंग सर्विस, ये मॉडल परफेक्ट अवेलेबल है आपके डिवाइस में। तो यू कैन डाउनलोड दिस मॉडल, you can fine tune this model and you can use in your mobile, in your device, in your smartwatch, in your robo, in your IoT. तो ये फ्री AI आपके लिए अवेलेबल है। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द जैमा। तो यहाँ पे ये प्राइवेसी है क्योंकि ये आपके डेटा को थर्ड पार्टी में नहीं ले जाता। जेमिनाई का तो प्रॉब्लम है ना, कहता है बहुत सारा डेटा सेट है, ओपन गेट है, आओ भाई आओ, अपनी बातें मुझसे शेयर करो। और हम सब करते भी हैं, जानते हैं कि हमारी सिक्योरिटी जा रही है, बट फिर भी हम यूथ, मैं यूथ नहीं हूँ सॉरी, आप लोग, कुछ भी हो जाए, लड़कियों का थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करने की इच्छा होती है। ओके, लड़के तो दोस्तों से फ़ोन कर लेते हैं, लड़कियों को थोड़ा सेंसिटिव होते हैं। तो उनको कुछ भी बात हो, मम्मी से लड़ाई हो गई, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, कोई भी इशू आ गया, सीधे ओपन द हाय टुडेज प्रॉब्लम व्हाट आई डू। आपको पता है कि चैट GPT आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, बट यू आर एक्चुअली अलाउ टू शेयर। ओके, आपकी लाइफ के साथ ये हो रहा है, बाद में बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। लेकिन फिनटेक कंपनी इसको अलाउ नहीं करेगी, फार्मा कंपनी अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए सेंसिटिविटी इम्पॉर्टेंट है। तब वो यूज़ करते हैं इस तरह के ओपन मॉडल को अपने सर्वर में, जहाँ पर वो AI का फ्रीली यूज़ करते हैं विदाउट वरिंग कि उनका डेटा थर्ड पार्टी पे नहीं जा रहा, क्योंकि AI कहीं बाहर है ही नहीं, कोई गेट वे नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं है। सॉरी, ये मुंबई का मौसम थोड़ा सा मुझे वेलकमिंग था थोड़ा सा। तो पूरा का पूरा ट्रैवल नहीं हो रहा, डेटा कहीं है आपके डिवाइस, आपके प्रेमिसेस में, तो सिविक सेफ्टी। दूसरा, जब डेटा ट्रैवल नहीं हो रहा तो नेटवर्क इशू नहीं है, स्पीड ऑटोमेटिकली आ गई, फ्री आपके पास है ही। तो ये सब है जैमा के फ़ायदे। ओके, अब बारी आती है कि जैमा को लें कैसे, फ्लटर में कैसे लें। ये पहला ऐसा इवेंट है जिसमें मैंने सिर्फ 4 स्लाइड की PPT बनाई है, ठीक है, क्योंकि मैं कोड लैब लेके आई हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फ्लटर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इवेंट मेरे लंच से पहले बहुत सारे लोगों ने फ्लटर सीख लिया, तो बस आपको ये फ्लटर आपको बनाना है। ओके, मीडिया पाइप। अब ये थोड़ा सा अटेंशन देना है कि मॉडल को मैं कैसे लूँ।
मॉडल मेरी वेबसाइट पे कैसे आएगा, मेरे मोबाइल में कैसे आएगा। तो अगर आपको इसे ऑफलाइन यूज़ करना है तो आप ओलामा को डाउनलोड कर लो। ओलामा क्या होता है कि किसी भी ओपन सोर्स मॉडल या क्लाउड बेस्ड मॉडल भी, स्पेशली ओपन सोर्स मॉडल को एक इंफरेंस आईडी की तरह यूज़ करता है और आप डायरेक्ट उस मॉडल के साथ आप बात कर सकते हो एज अ चैट जीपीटी, और या फिर वो एक यूआरएल क्रिएट कर देता है, एपीआई क्रिएट कर देता है, जिसे आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। दिस इज अ वन वे। सेकेंड वे, VLLM। गूगल ने प्रोवाइड कराया VLLM, जो कि ओलामा की तरह ही है, सेम है, तो आप VLLM यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अभी आप फर्स्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो, यू आर थिंकिंग टू मेक अ परफेक्ट एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर्स। वैसे भी फार्मर के लिए जेमा यूज़ करना, क्योंकि गांव में नेट नहीं आते अभी भी, तो दैट्स अ रीज़न जेमा इज गुड। ओके, तो आप अगर VLLM यूज़ करोगे डायरेक्ट तो थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि VLLM थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ओलामा बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्शन में आओगे, कस्टमर्स आते हैं, यूजर्स आते हैं, तो VLLM इज गुड। तो ये दो हमारे इंफरेंस आईडी हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास है मीडिया पाइप। मीडिया पाइप एक इंजन है जो आसानी से फ्लटर में एक्सेप्ट हो जाता है। मतलब फ्लटर में आपने वो प्लग इन इंस्टॉल किया तो वो डोमेन को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे DVD को चलाने के लिए DVD प्लेयर होता है। तो उसी तरीके से मॉडल को पढ़ने के लिए एक इंफरेंस होता है जो यूजर भाषा में इनपुट और आउटपुट को समझता और मॉडल को देता और मॉडल से लेता है। ओके तो मीडिया पाइप का काम भी यही है। मीडिया पाइप एक इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है LLM और मशीन लर्निंग के साथ, और फिर आंसर देता है। मीडिया पाइप का वो काम है। और तीसरा हमारा जेमा, हमारा हीरो। ओके, सो ये है हमारा सिंपल तरीका। फ्लटर इंस्टॉल करो, जेमा मॉडल को ले आओ। कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी लाओ, केगल से ले आओ, अवेलेबल है। हगिंग फेस से ले आओ, अवेलेबल है। गूगल के प्ले स्टोर से ले आओ, वहाँ भी अवेलेबल है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारे लेटेस्ट मॉडल अवेलेबल है। कंफ्यूजन पता है कहाँ होता है? वेब के लिए अलग मॉडल होता है, मोबाइल के लिए अलग मॉडल होता है। तो मोबाइल के लिए अगर आपको लेना है तो आप केगल से लाओ, जिसका लास्ट एक्सटेंशन होना चाहिए .task। ओके, लेकिन अगर आप ओलामा में यूज़ कर रहे हो, फाइन ट्यून कर रहे हो, तो उसका होगा GGUF। ये C++ फॉर्मेटिंग होता है, तो वो उसे ओलामा के अंदर रीडेबल बना देता है। तो मुझे किसके लिए चाहिए? फ्लटर के लिए। तो फ्लटर के लिए हम यूज़ करेंगे .task। तो अगर आप हगिंग फेस से ले रहे हो जामा 3, तो आप जाकर फाइल में जाकर चेक कर लेना कि .task वाला ऑप्शन हो, उसको सिंपल डाउनलोड कर लेना, मॉडल आपके पास आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो आपको मॉडल को डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद फ्लटर की हेल्प से एक चैट UI बनाना है, और मॉडल आपके पास है तो कनेक्ट करना है। देन आपका रेडी है। कितना छोटा है, सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। अब ये दो इसीलिए हैं ताकि आप मेरी कोड लैब देख सको, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाया है। और पहला वाला जो गिटअप है वो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया है, और दूसरा वाला जो QR कोड है वो है आपका कोड लैब, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मेंशन की है, क्योंकि इस इवेंट की थीम है कि आज आपको ये सब कुछ अपने घर पे बनाना है। और नेक्स्ट आई थिंक विवेक ने सब कुछ मेंशन कर रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये होमवर्क भी कह सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, ये इतना अच्छा होमवर्क है कि अभी 2 घंटे में आपका ऐप तैयार हो जाएगा और आपके मोबाइल पे चल जाएगा। यू कैन ओपन योर दिस कोड लैब इन योर मोबाइल, योर लैपटॉप। ये मेरी 2 कोड लैब है, बस इतनी ही थी। मैंने कहा ना मेरी 4 स्लाइड ही थी, बट डोंट वरी, मैं सॉरी, दिस इज अ कोड लैब। नहीं खुला क्या? वापस जाऊं क्या स्कैन पे? वापस जाऊं? या यू कैन टेक द पिक्चर। पहली वाली गिटअप की है,
सोर्स कोड लेने के लिए चीट मत करना, कोड कॉपी पेस्ट करके मत लगा देना, फिर विवेक नहीं तो फिर टेस्ट ले लेगा अगली बार। तो बस ओनली फॉर हेल्प, ओके। एंड सेकेंड इज अ कोड लैब विच ए स्टेप बाय स्टेप मेंशन ईच स्टेप। सेकेंड वाली खुल रही है कि नहीं? खुल गई? कितने लोगों का खुल गया वो सेकेंड वाला? यू ओपन? ओके, शिफ्ट कर दूं मैं इसको, वो कर, ओके। सो दिस इज ए एक्चुअल कोड लैब जो मैंने आपको शेयर करी है। दिस इज ए एक्चुअल कोड लैब जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल मैंने बताया, वैसे स्टेप इतने नहीं होते। मैंने पर्सनली आई क्रिएटेड मैनी एप्लीकेशन. One of them I created a best application which selected in a California as well. That was a legal AI assistant. So I created a mobile app using the Flutter, using the Gemma legal AI. So I trained my Gemma with around 3 lakhs data of the Indian legal data. I trained. अब अभी तक मैंने लॉन्च नहीं किया उसको, अभी मैं लॉन्च करूँगी क्योंकि थोड़ी लीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टेस्टिंग हो रही है क्योंकि लीगल है ना। सो मेरे मॉडल के साथ आप एक स्टूडेंट भी पूछ सकता है, एक एम्प्लॉय, भाई मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जॉब का, सो 4, 5, 17, 18 पेज का एक पूरा लीगल पेपर थमा देते हैं। फर्स्ट पेज में अपना नाम देखते हैं, नीचे देखते हैं सैलरी है, ख़त्म हो गया, साइन कर देते हैं। लास्ट के पेज तो पढ़ते ही नहीं है कि क्या इशू है, ओके। ऐसे ही हम लोग हर जगह करते हैं, अपना कई बार रेंट पे मकान लेते हैं, देते हैं, अ लॉट ऑफ इशू। और ये इतने छोटे केसेस होते हैं कि लोग लॉयर पे जाना नहीं चाहते क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लॉयर तो अभी 500,000 रुपये ले लेगा। सो दैट्स द रीजन आई क्रिएटेड द लीगल AI असिस्टेंट यूजिंग द लीगल डेटा. I trained this model and after that I sat in the Flutter application. This is one of the example which I created. You can create your own application, you can create your own system. So you can download the Gemma, you can fine tune the Gemma. After that you have to convert your Gemma in the task form and after that you can direct call in the Flutter. Simply download and keep in the Flutter model. मतलब एक फोल्डर बना देंगे जहाँ हम इमेज रखते हैं ना एसेट्स वाला, बस एसेट के अंदर मॉडल को रखेंगे and then it will accessible. Simple. So this is a step जो मैंने स्टार्टिंग से बताई है। फर्स्ट स्टेप क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, अब इसके अंदर है। आई एम द गीता काकरानी, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, AI कंसल्टेंट एंड ट्रेनर। सो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो और कोई क्वेरी हो इसके बाद, तो यू कैन कनेक्ट मी इन द लिंक्डइन, ये आपके पास है, यू कैन कनेक्ट मी आफ्टर दिस लिंक्डइन, ओके। सो यू कैन आस्क योर क्वेरी, यू कैन कनेक्ट मी इन द लिंक्डइन, दिस इज अ माई प्रोफाइल। देन this is a starting process. You can simple install the Flutter. I know you know it already. How can we download, how can we set? Then उसके बाद about the Gemma, how can we download? How we can download from the Kaggle, we can download from the Hugging Face. Personally I suggest download from the Kaggle. Kaggle is good, okay? And Kaggle आपको free of cost TPU भी देता है. What is the TPU? If you have a huge data set, like I have a 3 lakh data set, तो अगर आप उसे CPU या GPU के साथ फाइन ट्यून करोगे ना, it will take lot of time, lot of like a 20 hours, 24 hours, 36 hours. So TPU आपके टाइम को बहुत ज़्यादा 3x पे स्पीड लेती है उसकी, तो वो बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। तो Kaggle provided the 15 GB TPU free of cost. So just get the Gemma in a Kaggle and fine tune with data set. And if you want to know more about how can we fine tune, you can connect me in the LinkedIn after this session. Right now मेरा बस सेशन था कि Gemma को कॉल कैसे करना है, ओके। देन उसके बाद you can call the media pipe. Media pipe is a huge topic, not a simple topic. मतलब यहाँ पे तो मैंने उसे इंफ्रेंस की तरह यूज़ किया, जो मॉडल को एक ब्रिज की तरह लेके आएगा फ्लटर में, लेकिन मीडिया पाइप का अपना बहुत रोल है। इफ़ यू वांट टू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इफ़ यू वांट टू फेस डिटेक्शन, इफ़ यू वांट टू आई डिटेक्शन, देन मीडिया पाइप क्या करता है, एक ओपन CV की तरह किसी भी तरीके से इनपुट लेता है, कैमरे से, आई, फेस, एवरीथिंग, और उसके अंदर ML सेट होता है, LLM सेट होता है, जिसकी हेल्प से आप प्रोसेस करते हो और फिर उसको आगे काम कर सकते हो। दिस इज अ मीडिया पाइपलाइन।
बट राइट नाउ आई एम यूजिंग द ओनली फॉर द जैमा, क्योंकि ये मॉडल को भी कैप्चर करता है, तो यहाँ पे फ्लटर में मेरा वो काम हो सकता है। या यू कैन यूज द विजन AI। एंड दूसरी बात, जो जैमा है दिस इज अ मल्टी मॉडल, तो आप जैमा का जो 4th वर्जन है, मतलब जैमा 4 है, उसमें ये आपका टेक्स्ट, इमेज, वीडियो को सबको समझता है। सो मीडिया पाइप की हेल्प से अगर आप उस तरह से जैमा को यूज़ कर रहे हो तो यू विल एबल टू एक्सेस इनपुट वट एवर यू वॉन्ट, इनपुट द इमेज, इनपुट द वीडियो, एवरीथिंग इट विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट is so now step the for create a new flutter project, you know I think। then उसके बाद आप उसमें जैमा, फ्लटर जैमा, आई नो यू नो, आई थिंक यू नो ना प्लगइन को कैसे ऐड करते हैं, तो हम वहाँ जाके प्लगइन को अपना ऐड कर देंगे और यहीं पर हम अपने मीडिया वाले प्लगइन को भी ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है ये, ओके। देन उसके बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड द जैमा मॉडल फ्रॉम द केगल, यहाँ पे मैंने उसका सबसे लाइट वर्जन लिया, int 4 टास्क। int 4 टास्क आपको पता है कितना है? अराउंड 1 GB। इससे ज़्यादा की मूवी तो आप वैसे ही मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हो, सही है ना? तो दिस इज अ 1 GB मॉडल विद द 1 GB AI, वो AI जो आपको बहुत दुखी करती है, रात रात भर जगाती है, ये आपके पास है, ओके। पर बच्चा वाला मॉडल है, 1 GB है, तो ज़्यादा उम्मीद मत करना। ट्रंप के बारे में बताएगा, सिया गोयल के बारे में नहीं बताएगा। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। नहीं, मैंने किया था पर्सनली टेस्ट, मैंने कहा हु इज़ ट्रंप, कहता डोनाल्ड ट्रंप, और बोलता है कि ये 2017 में आया था और 2021 में गया। मैं समझ गई इसको ज़्यादा नहीं पता। मैंने कहा हु इज़ सिया गोयल, कहता है ही द मॉडल एंड वेरी इन्फ्लुएंसिंग मॉडल। आई नो। सो आप इसे ग्राउंडिंग करेंगे तो समझ जाएगा, ओके। वैसे मत सर्च करना सिया गोयल को, ठीक है। दैट्स इट। नेक्स्ट चैट UI। कितने लोग ईमानदारी से इसको लिखेंगे? हॉनेस्ट, मैं भी नहीं लिखती, मैं भी नहीं लिखती, क्योंकि मेरे पास क्लाउड है ना भाई, थोड़ा तो फ्री देता है ना, तो मैं उसको बोल देती हूँ भाई मॉडल कॉल करा लिया, ट्रेन करा लिया, आई एम AI इंजीनियर, ये मेरा काम है, ये UI बनाना मेरा काम नहीं है। तो UI बनाना, लेकिन हाँ न्यू फ्लटर वाले को UI पता होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि स्कैटफोल्ड क्या होता है, विजेट कैसे बनते हैं, उसको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप आराम से अपनी थीम, अपना स्टाइल बता दो, जनरेट हो जाता है, टेस्ट कर लो सही है, उठा के लगा देना, सिंपल है, ओके। ये वाला भी कॉपी कर सकते हो चाहो तो, बट विवेक फिर बोलेगा तो अपना लगाना। ओके। नेक्स्ट इज क्रिएट अ जैमा सर्विस। यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट चीज, कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। जैमा मॉडल को कॉल कर रही हूँ, इनपुट आउटपुट सेट कर रही हूँ, बस खत्म, इतना ही है, नॉट अ बिग डील, वेरी सिंपल, ओके। एंड देन उसके बाद जस्ट अ कनेक्ट यूजिंग द मेन, क्योंकि हम UI और मॉडल दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, गेटवे बना रहे इनपुट के लिए। एंड देन उसके बाद यू जस्ट टेस्ट योर मॉडल, यू कैन टॉक विथ इट। आई हैव इन माई मोबाइल, बट हर जगह होता है, बट हेयर भी है। इन अ फर्स्ट टाइम यू आर इंस्टॉलिंग दिस ऐप इन योर मोबाइल, डजंट मैटर इट्स अ 1 GB, इट विल टेक द टाइम फर्स्ट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर डाउनलोडिंग, यू आर नॉट इंस्टॉलिंग द ऐप, यू आर डाउनलोडिंग अ फुल मॉडल। एंड अगर आपने उसे फाइन ट्यून किया तो आपके मॉडल का साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ओके। तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि जब आप मॉडल को बार बार फाइन ट्यून करते हो तो आपके मोबाइल पे आपका एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है और उसको इंस्टॉल करने में आपको स्ट्रगल लगता है। तो वी हैव टू बी पेशेंस कि पहली बार लगेगा, बाद में नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपके मोबाइल का सेटअप कम है, लैपटॉप कम है, तो जब भी आप उसे इनपुट करोगे, क्योंकि आपने उसे फाइन ट्यून करके रखा है, तो वो अंदर बड़ा साइज है, तो वो अपनी क्वेरी को ढूंढने के लिए एक ट्रेवल कर रहा है। सो दैट्स द रीजन कि वो लेटेंसी थोड़ी सी इसकी मेंटेन होती है, जैसा साइज बढ़ता है वैसे इसकी लेटेंसी होती है। फ्री है पर ढीला है। और तीसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अभी तो बताया सिया गोयल, दैट्स इट,
डाटा सिंफो के साथ नहीं रहता। तो एवरी टाइम वी हैव टू ग्राउंडिंग, वी हैव टू अप्लाई अपसेट सेटिंग विद अ गूगल सर्च, वी हैव टू सेट विथ अ रैग, वी हैव टू फाइन ट्यून। तो मतलब मुझे मॉडल को अपडेट करने में हमेशा लगे रहना पड़ता है, तब जाकर वो रियल इन्फॉर्मेशन को सेट करेगा। तो मैंने आपको प्रॉस बताए, मैंने आपको कॉन्स बताए। अब ये आपके ऊपर है कि कैसे प्रॉस लेना है, कैसे कॉन्स लेना है और आपके लिए कैसा है। तो दिस इज एक्चुअली वर्जन ऑफ द जैमा, यानी कि लोकल एआई, एंड रियली नॉट इन इंडिया। मतलब आई पर्सनली गिविंग द टॉक इन द लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आई एम नॉट अ गोइंग देयर ऑनलाइन, ओके। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोकल एआई को वाकई लाइक कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न है हर जगह। तो वो लोग इसकी ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि इसकी स्पीड बढ़ाई जा सके, लेटेंसी कम करे, लेकिन इसका मार्केट वाकई बहुत है। एनीवे, मैंने अपनी तरफ से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क। या सॉरी आई कांट हियर। हाँ, यस आई डिड एक्चुअली। वो जो लीगल डेटा था, मैंने अपने क्वेश्चन को 4 तरीके से डिफरेंट तरीके से उसको ट्रेन किया। जस्ट लाइक आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ रेंटल एग्रीमेंट, आई एम एम्प्लॉय, आई हैव अ रेंटल एग्रीमेंट, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई हैव अ रेंटल एग्रीमेंट। सेम क्वेश्चन को, सेम लीगल को, सेक्शन को मुझे 10 बार उसे ट्रेन करना पड़ा, डिफरेंट तरीके से। तो दिस इज अ वे ऑफ द रीजनिंग मैथड। तो फाइन ट्यून इज टोटली अपॉन यू। Yeah, because if you are using the CPU, then you have to give a lot 2-3 days, but GPU can be better help. आपने हार्डवेयर, आपका खुद का एक्सटर्नल हार्डवेयर है जहाँ? नहीं, मैं गूगल से हूँ, मुझे सब फ्री मिलता है। तो हाँ, फ्री मिलता है, लेकिन पता नहीं कब चार्ज भी कर देते हैं। कहते थे हमने तो आपको फ्री दिया था, फिर भी आपने थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया, तो 200-300 रुपये ले लेते हैं, आपसे ज़्यादा लेंगे। हाँ, आप में 1 जीरो और लग जाएगा। एक तो लगेगा ही मिनिमम, 2 लग सकते। एंड या आप यूज़ कर सकते हो जैनकिट, बिकॉज लोकल मॉडल है, एंड लोकल मॉडल को यूज़ करने के लिए यू हैव अ लॉट ऑफ वे। एंड AWS अगर आपके पास है तो वहाँ से भी कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हो, अपना पर्सनल कर सकते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग। मैम, ये गूगल AI एज गैलरी हाँ, होते हैं एक्चुअली उन्होंने एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, एक बहुत प्यारा इंसिडेंट है। एक स्टूडेंट है, ज़्यादा इसको फेमस नहीं किया गया, एक स्टूडेंट ने एक हैकाथॉन के लिए एक स्मार्ट मिरर बनाया। यू डोंट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द स्मार्ट मिरर, लड़कियां समझ जाएंगी। हमारे पास अलमारी में 1000 कपड़े होते हैं, लेकिन कभी भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास ड्रेस नहीं होता, राइट? सेकेंड प्रॉब्लम, मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। मतलब मैं ऑलवेज कंफ्यूज, मतलब मैं नहीं, नॉर्मली कंफ्यूजन मैं भी होती हूँ। तो दैट्स द रीजन स्मार्ट मिरर, कि हम सीधे मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएं और जाकर उससे बोले कि आज मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है, मीटिंग में जाना है, डेट पे जाना है, तो बताओ आज मैं क्या पहनूं। उसको पता है मेरे वार्डरोब में क्या है, देन वो मेरे आउटफिट के साथ मेरा एक मिरर क्रिएट कर देता है, मतलब एक अवतार क्रिएट कर देता है, और मैं कन्विंस हो जाऊंगी और मैं वो ड्रेस पहन लूँगी। दिस इज एजेस, ओके। तो एक ये एग्जाम्पल बन चुका है, अभी तक यहाँ नहीं आया, बट या एक स्टूडेंट ने हैकाथॉन में इसको बनाया था। एग्जांपल अभी कमर्शियलाइज भी हो रहा है, लाइक जो शॉप्स है जहाँ पे कपड़े हाँ, वहाँ पे ये नहीं, उन प्रपोज किया गया है ये, या कंपनी है वो इंडिया में लॉन्च भी कर रही है, दैट्स इट, कुछ जगह पे टेस्टिंग। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या होता है, ऐसे जो डिवाइसेस हम बनाते हैं वहाँ पे हम जेमिनाई को यूज ही नहीं कर सकते। जेमिनाई को यूज़ करेंगे तो दुकानदार की 4000 की ड्रेस 5000 का तो API दे रहा है, कहेगा छोड़ो यार ऐसे ही ले जाओ। सो दैट्स द रीज़न कि जैमा मॉडल छोटी छोटी जगहों पे छोटे दुकानदारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप है, 250 रुपये की कॉफ़ी बेचता है। अब वो एक चैटबॉट बनाए जो यूजर से बोले हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप, क्या लेना चाहेंगे। अब यूजर भी बहुत इंडिया के बहुत अच्छे होते हैं, उनका पहला जवाब पता है क्या होता है, हाय हाउ आर यू।
मतलब हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। भाई उसने 4 क्वेरी पूछ ली और पीछे से आपकी बिलिंग लग गई। सो दैट्स अ रीजन इफ यू, और अगर नहीं कर रहे हो तो रूट लगेगा, फिर अपन कहेंगे तू रख, ओए आना जरा कॉफ़ी तो ले आना, ये ज़्यादा बेटर है। सो दैट्स अ रीजन इफ यू वांट टू मेक अ फीलिंग गुड देन वी हैव टू मेक EI पर्सनलाइज एंड इट्स अ रियली कॉस्टली। सो ऐसी कंडीशन में ये लोकल EI अच्छी है, बट सक्सेसफुल इसलिए नहीं है अभी तक क्योंकि लिटेंसी इसका अभी तक एक चैलेंज पॉइंट है एंड वी ऑल आर डूइंग ऑन दैट। मतलब मैं पर्सनली रिसर्च कर रही हूँ इस पर, गूगल भी कर रहा है। सो दैट्स इट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? बाय द वे इंटरेस्टिंग और नॉट? अच्छा है ना जयमा? हाउ हाउ? जैसे आपने बोला था कि स्मार्ट कपड़ा उसको पता है कि सब कुछ मेरे पास है, इतने सारे मेरे कपड़े हैं। भाई एक लड़की कितने कपड़े पहनेगी? 1 बिलियन डेटा। सजेस्ट जब करेगा, वो जब सजेस्ट करेगा तो वो एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए सजेस्ट करेगा। हाँ बट बाद में अगर उसको मेरे पिछली बार क्या पहना था तो वो बता सकता है। हाँ, मेमोरी है ना। अच्छा ये वाली मेमोरी, दैट्स या यू कैन मेंटेन ना। ये तो आप नॉर्मल जेमिनाई के साथ जो कर रहे हो वो आप यहाँ कर सकते हो। API बेस्ड है, बट ये नहीं, दिस इज अ ओनली ब्रेन, यू आर यूजिंग दिस ब्रेन। फाइन ट्यून कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो रैक दे दो, बट मेरे हिसाब से आपका जैमा मोर एक्सेसिबल फाइन ट्यून के बाद ही है। नॉर्मली तो वो एक बेस मॉडल है हाय हेलो वाला, और कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर आप उसे फाइन ट्यून करोगे तो ये बेटर पर्सनलाइज हो जाता है, समझता है। एंड इज देयर एनी अनदर क्वेश्चन? मुझे लग रहा है जैमा ये फ्रंट 4 रोज को बहुत अच्छा लगा, बैक साइड वालों को जैमा पसंद नहीं आया। पसंद आया? अच्छा, नहीं मुझे भी बताओ, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ डिस्कशन। कंटेक्स्ट इसमें कैसे होगा? कंटेक्स्ट कैसे है? जैसे कंटेक्स्ट हम माउस में तो .md फाइल्स लगा देते हैं, हाँ इसमें कंटेक्स्ट लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल। आई आल्सो यूज द आर्किटेक्चर, मतलब ये आपकी बात है मैं बता रही हूँ। आई यूज द आर्किटेक्चर विच इज द डायनामिक राउटिंग, मैंने क्लाउड पे बनाया है, जहाँ पर मैंने जेमिनाई और जैमा दोनों को यूज़ किया बिजनेस में, क्योंकि मैं EI कंसल्टेंट भी हूँ। तो मैंने उन्हें बताया, उनका क्या था, यही था, वो ई-कॉमर्स चलाते हैं। उनका कहना था कि मैं कस्टमर बॉट, अच्छा आपने खुद देखा जोमेटो का कस्टमर बॉट कितना गंदा है, या इंडिया का कस्टमर बॉट कितना गंदा है। तो बहुत सारी कंपनियां अंदर तो EI यूज़ कर रही हैं, लेकिन कस्टमर बॉट अच्छे नहीं बना रही हैं, वहाँ EI नहीं लगा रही हैं। तो आई आस्क व्हाई, तो कहने लगा यही लोग हाय हेलो पूछते हैं, मौसम पूछते हैं। भाई मैंने इसलिए बनाया कि आइटम में कोई इशू है तो बताओ, ऑर्डर में इशू है तो पूछो, वो तो बात की बात है, पहले बोलते और क्या कर रही हो, ऐसा पूछते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो नाम होते हैं उनके ऐसे, तो लोग टाइम पास करते हैं। तो दैट्स अ रीज़न उनका हम कस्टमर मॉडल पे पैसा नहीं लगाते। सो आई सजेस्टेड कि आप डायनामिक राउटिंग बनाइए। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी है, रियल क्वेरी है, किसी का पैसा फंस गया, इशू आ गया, तो ये जेमिनाई पे चला जाए। लेकिन अगर नॉर्मल है, हाय हेलो हाउ आर यू, वेदर, नॉर्मल प्रोडक्ट, तो आप जैमा पे चले जाओ। तो और रही बात बाकी, और ये मैंने एजेंटिक से किया, और एजेंटिक में MD टूल एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो वो उसको यूज़ कर रहा। तो ये और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम अपनी 60% कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग द डायनामिक राउटिंग। एंड जैमा इज नॉट अवेलेबल, मतलब लेटेंसी के लिए बहुत लोगों ने बहुत काम किया। पहला काम उन्होंने क्या किया कि क्लाउड जैसे डायनामिक राउटिंग है, तो उन्होंने कहा कि जैमा को मोबाइल पे नहीं दे रहे, जैमा को हम क्लाउड पे ही रखेंगे, GKE में रखेंगे। मैं GKE इसलिए बोल रही क्योंकि गूगल से हो, आप लोग AWS है तो वहाँ पे कुबरनेटी पे रख सकते हैं, तो वहाँ पे GKE पे रखेंगे। GKE पे क्या होता है, 1 टाइम चार्ज होता है, बाकी आपका सेल्फ होस्टिंग चार्ज होता है बट 1 टाइम। जेमिनाई तो हर बार है। तो अगर आपके पास 10,000 कस्टमर हैं तो 1 टाइम चार्ज नॉट अ मेन प्रॉब्लम, आप उसे 1 टाइम सेट कर दो एंड देन हैप्पीली रन विदाउट लेटेंसी, क्योंकि अब लेटेंसी वाली बात ही खत्म हो गई, क्योंकि ये तो क्लाउड से आ रहा है ना, GKE से आ रहा है। सो आपका लेटेंसी का इशू खत्म, ये है। और कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो जेमिनाई है, रियल मार्केट मतलब रियल का क्वेरी है तो जेमिनाई है, तो वो भी आपका इशू खत्म। तो ये पूरी तरीके से एजेंटिक सपोर्टिंग है इसका।
और अगर लोकल बना रहे हैं, जैसे स्टूडेंट हैं, अभी सीख रहे हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इस जैमा को ओलामा के साथ API बना सकते हो, स्पीड मेंटेन होगी। डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, स्पीड मेंटेन होगी। सो यू कैन डू दैट। दस मिनट हो गया। नहीं, मैं बस ये दिखा रही, मेरा हो गया सेशन। हाँ हाँ, ये देखो, ये मेरा ओलामा है। सी दिस इज ओलामा, जिसके बारे में मैंने बताया। ओके, मैंने जैमा को फाइन ट्यून किया था, मतलब मैंने लास्ट में एक सेशन लिया था महाराष्ट्र में, तो उनको मुझे सिखाना था लाइव प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी हेल्प करती हूँ। मैं महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता महाराष्ट्र का, लेकिन मैंने फिर भी उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया मतलब मैंने यहाँ पे एक मॉडल, मेरा खुद का मॉडल है, कृषि मित्रा। दिस इज ए कृषि मित्रा विच ए फाइन ट्यून ऑन द महाराष्ट्र सॉइल। ये महाराष्ट्र की वेदर के बारे में जानता है, महाराष्ट्र की मिट्टी के बारे में जानता है, महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर के बारे में जानता है। तो मैंने अपने मैंने जैमा को डाउनलोड किया, 1 बिलियन पैरामीटर को डाउनलोड किया, उसे मैंने महाराष्ट्र के डेटा सेट के साथ ट्रेन किया, और ट्रेन करने के बाद आप ये देखो, मैं किसी मोबाइल में नहीं चला रही हूँ, डायरेक्ट ओलामा में सेट कर रही हूँ। और ओलामा में आने के बाद तो बात ही अलग है। तो मतलब आप तो कुछ भी कर सकते हो फिर तो। ओलामा में अभी सबके लिए अवेलेबल है, सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल? आपके लिए अभी आपके लिए है, लेकिन अगर आप ओलामा को क्लाउड से लेते हो, ओलामा क्लाउड पे भी है। नहीं, तो मेरा खुद का मतलब मैं ट्रेन करता हूँ, हाँ, दैट इज ओनली फॉर मी। क्या बट कैन आई मेक इट अवेलेबल थ्रू ओलामा टू एवरीवन? नो। या यू कैन डू दैट। मतलब कैन आई यूज इट लाइक अ प्ले स्टोर? या ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। या एंड इज इट चार्जेबल शेयरिंग? नहीं, ओलामा ओपन सोर्स है। मैं यूज़ करता हूँ उसे किमी के लिए। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है किमी, और मैं ओलामा यूज़ करता हूँ। इसका क्लाउड वर्जन आ चुका है, तो क्लाउड वर्जन के अंदर आपको ये URL देता है ओपन सोर्स का, तो आप अपना मॉडल वहाँ पे सेट कर सकते हो, बट एक लिमिटेड, प्रोडक्शन पे आते ही फेल हो जाएगा। इसके लिए फिर VLLM है। मतलब पर्सनली अगर आपको प्रोडक्शन है, स्केल है, कस्टमर है, आई विल नॉट सजेस्ट ओलामा। VLLM ओपन सोर्स है, सेटअप चार्ज नहीं लेता, सीधे मॉडल चार्ज लेता है। मॉडल कौन सा? जेमिनाई है तो इनपुट आउटपुट, नहीं तो जैमा सेटअप, बस। सो आई थिंक आई सजेस्ट यू कि VLLM लो अगर आप मार्केट में जाना चाहते हो, ओलामा लो अगर आप लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने जैमा को ट्रेन किया है, सेट किया है और यूज़ कर रही हूँ। आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो नेट है पर फिर भी ये नेट से नहीं, ऐसे ही चलेगा। तो मैंने इसको दिया हाई, और उसके बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इट्स ए लेटेंसी है इसमें, और ये 3 भाषाएं समझता है, मराठी भी समझता है, हिंदी भी समझता है और इंग्लिश भी समझता है। और इसके लिए मैंने इसको 3 डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रेन किया है। तो दिस इज अ मॉडल। इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स भी रखे होंगे कि मतलब हाँ पास कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल इवैल्स जो कहते हैं। बिल्कुल। सो लास्ट, डोंट वरी, इज देयर एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी आइडिया? यस, सॉरी, व्हाट सॉफ्टवेयर आर यू यूजिंग फॉर फाइन ट्यूनिंग इज आस्किंग? अच्छा, फाइन ट्यून डिफरेंट, मतलब जैसे मैंने लोरा का भी यूज़ किया है, क्यूलोरा का भी यूज़ किया है, मैक्सटेक्स का यूज़ किया है, ट्यूनिक्स का यूज़ किया है। मैंने कहा ना, मैं तो गूगल से तो मैं बहुत फ्री मिलता है। तो ट्यूनिक्स एक फ्रेमवर्क है जो मैंने डिस्टिलेशन के लिए यूज़ किया। डिस्टिलेशन कैसे? मैंने 4 बिलियन पैरामीटर जैमा को उठाया, उसके ही क्लाउड पर ट्रेन किया, और फिर उसको मैंने छोटे वाले जैमा में डाला, और फिर छोटा वाला जैमा यहाँ यूज़ किया। तो दिस इज अ वन वे। क्वांटाइजेशन के लिए क्यूलोरा कर सकते हैं आप, तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वैसे क्यूलोरा अच्छा है, क्वांटाइजेशन पे काम करता है, बहुत सही मॉडल है, परफेक्ट। इधर एनी अनदर क्वेश्चन? अगेन आई एम आस्किंग, स्लीपी और एनर्जी? स्टिल ऑनेस्टली दैट्स इट, मतलब जैमा जीत गया।
थैंक यू सो मच. अब आपके पास मेरा लिंक्डइन है. इफ़ यू लाइक देन यू कैन कनेक्ट मी. ओके. एंड कुछ बनाने के बाद या कुछ इशू आता है तो यू कैन आस्क मी. हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं थोड़े स्ट्रिक्ट हैं. अगर आपने नेक्स्ट टाइम तक नहीं बनाया तो वो आपको सजा देंगे. डोंट वरी, आई एम वेरी सॉफ्ट. आप लिंक्डइन पे मुझसे आराम से पूछना, इससे बेटर आइडिया बता दूंगी आपको. चलिए, ओके, थैंक यू.